Right, beta. So at number 3, after the oligodendroglioma, this is another very interesting glial tumor. Ependymoma, as the name indicates, it arises in the proximity to the ependyma-lined ventricular system and the central canal of the spinal cord. As you know, beta, that if I draw here a little, that your ventricles, and this is the ventricular cavity, whatever this can be the lateral ventricle, third ventricle, or the fourth ventricle, and below in the spinal cord there is the central canal जिसमें CSF रन करता है and this central canal in the spinal cord and the ventricles in the brain, they are lined by a very beautiful kind of the cells that are, yeah, just like this, lining the, these are the cells called ependymal cells. So ependymal cells are actually lining your ventricular system, and not only the ventricular system but the central canal running in the spinal cord, right, carrying the CSF, right, cerebrospinal fluid. So these are the ependymal cells, and ependymomas actually arise in proximity to these ependymal cells, right. They can either grow outward, or can the tumor which is growing, it can grow inward. We'll talk about this in detail. दिस ट्यूमर इज़ मोर कॉमन इन द फर्स्ट 2 decades ऑफ द लाइफ, यानी कि बच्चे के पैदा होते साथ, और जो फर्स्ट 2 decades होते हैं, 10 साल से लेकर 20 साल की उम्र, 20 साल से लेकर 30 साल की उम्र जो होती है, ठीक है बच्चों, इस तरीके से. देन मोस्टली दे अराइज नियर द फोर्थ वेंट्रिकल. As I mentioned that these tumors arise from the ependymal cells lining the ventricles, so especially the fourth ventricle, right? And the ependymomas make up only 5 to 10% of the primary brain tumors in this age. This ependymoma can occur in the adults as well, but in adults most common location is the spinal cord. You now understanding the difference between two. जो एपेंडाइमोमा है वो बच्चों के अंदर भी हो सकता है, जो फर्स्ट 2 डिकेड्स होते हैं लाइफ के, ठीक है, और फर्स्ट 2 डिकेड्स ऑफ लाइफ, आई मीन टू से द अर्ली एज ऑफ द लाइफ अप टू द 20 years, and it can occur in the late adults, 40 years old, 50 years old, 60 years old. If let's suppose I am 10-year-old boy, so what type of ependymoma you think I will develop? The ependymoma that I will develop, it will develop near the fourth ventricle or near the spinal cord. If I am a 10-year-old boy, so it will develop near the fourth ventricle. But if I am a 56-year-old man, late adult, so the ependymoma most common location will be the spinal cord, right? Okay. Tumors in this site are frequent in setting of न्यूरोफाइब्रोमेटोसिस टाइप 2. खास करके जो एडल्ट्स होते हैं जिनमें एपेंडाइमोमा डेवलप होता है स्पाइनल कॉर्ड में, उनमें एक एसोसिएशन पाई जाती है दैट दे concurrently they also have a disease called they have a disease called न्यूरोफाइब्रोमेटोसिस टाइप 2. तो कुछ इस तरीके का कम्बिनेशन होता है बेटा कि एक पेशेंट है and this patient is 56 years old, and now you guess what type of ependymoma. Okay, what will be the location of ependymoma in this patient? Spinal cord की जो सेंट्रल कैनाल के अराउंड एपेंडाइमल सेल्स यहाँ से ओरिजिनेट होगा, एंड दिस पेशेंट साइमल्टेनियसली have the association of the neurofibromatosis type 2 disease as well. ठीक है जी, easy हो गया. What are the underlying mutations, the molecular genetics behind the development of this glial tumor? Ependymoma that are arising in the spinal cord, they show mutation in the NF2 gene on chromosome number 22. What I mean to say is, if the tumor, that is the ependymoma, arising from the ependymal cells around this central canal in the spinal cord, in that case the underlying mutation is the neurofibromatosis type 2 gene on chromosome number 22, right? Okay, yeah, that's it. Okay, so if I recap this part a little, this is not very common primary brain tumor, only 5 to 10%. जो यंग एडल्ट्स होते हैं, फर्स्ट 2 डिकेड्स होते हैं लाइफ के, उनमें ये ट्यूमर एपेंडाइमल सेल से अराइज होता है नियर द फोर्थ वेंट्रिकल. लेट एडल्ट्स के अंदर स्पाइनल कॉर्ड में से अराइज होता है, ठीक है. स्पाइनल कॉर्ड
में से जब अराइज होता है एपेंडाइमल सेल, स्पाइनल कॉर्ड के जो सेंट्रल कैनाल होती है उसके लाइनिंग एपेंडाइमल सेल से अगर ये ट्यूमर ओरिजिनेट होता है तो इट इज़ ऑलमोस्ट ऑलवेज एसोसिएटेड विथ अनदर डिजीज़ इन द बॉडी, दैट इज़ न्यूरोफाइब्रोमाटोसिस टाइप 2 डिजीज़। ओके, और इस केस में अंडरलाइंग म्यूटेशन कौन सी होती है? NF2 जीन की म्यूटेशन क्रोमोसोम नंबर 22 पे, राइट बेटा? सो इट कैन नॉट बी ईजियर देन दिस। लेट्स टॉक अबाउट द मॉर्फोलॉजी ऑफ द एपेंडाइमोमा कि ग्रॉसली ये ट्यूमर किस तरीके का दिखता है और अंडर माइक्रोस्कोप हाउ ब्यूटीफुल इट इज़। Let me tell you, beta, that grossly ependymomas are very much solid and they are the non-infiltrative masses. The thing I like about I like the most about this is non-infiltrating. It is solid, localized. The astrocytomas we discussed earlier, they were very much infiltrative, but they are non-infiltrative. Right? In posterior fossa, they arise from the floor of the fourth ventricle, खास करके young adults के अंदर. Occasionally growing through the foramina of the medundi or foramina lusca. Or then what happens, extending below the foramen magnum into the spinal canal of the spinal cord. तो कहने का मकसद ये है, अगर आपके पोस्टीरियर फोसा में मौजूद फोर्थ वेंट्रिकल में ये ट्यूमर डेवलप होता है तो वो वहाँ से एक्सटेंड कर सकता है और वो फोर्थ वेंट्रिकल से नीचे, ब्रेन स्टेम से नीचे स्पाइनल कॉर्ड जो है, सर्वाइकल स्पाइनल कॉर्ड, उसकी सेंट्रल कैनाल तक पहुँच सकता है। इफ़ यू हैवंट फॉरगॉटन, देन the three parts of the skull, right? The anterior fossa, the posterior fossa, the middle cranial fossa, the posterior fossa, which is below, continued into the spinal canal. So if here is the fourth ventricle, so this fourth ventricle is below connected to the central canal of the spinal cord, right? So if the ependymoma develops in the fourth ventricle, it can extend below into the central canal of the spinal cord. Look, in the posterior fossa, ependymoma arise from the fourth ventricle, और कभी कभार ये होता है कि ये नीचे एक्सटेंड कर जाता है फोरामिना मैग्नम से नीचे और जाके सर्वाइकल स्पाइनल कॉर्ड का जो स्पाइनल कैनाल है उसमें चला जाता है। ठीक है जी। एपेंडाइमोमास आर मॉडरेटली वेल डिमार्केटेड फ्रॉम द एडजेसेंट ब्रेन टिश्यू एंड द प्रॉक्सिमिटी टू वाइटल स्ट्रक्चर्स मेक्स कंप्लीट रिमूवल इम्पॉसिबल। कहने का मकसद ये है, वैसे तो ये बड़ा सॉलिड सा स्ट्रक्चर सॉलिड सा ट्यूमर होता है, नॉन इन्फिल्ट्रेटिंग होता है, लेकिन अगर ये ब्रेन टिश्यू है बेटा, जहाँ पे ये एपेंडाइमोमा मौजूद है, ये फ़र्ज़ करें ट्यूमर मौजूद है, ठीक है, आप इस ट्यूमर को, ये मॉडरेटली वेल डिमार्केटेड होता है एडजेसेंट ब्रेन, ये नॉर्मल ब्रेन टिश्यू है, ये ट्यूमर टिश्यू है। आप डिस्टिंग्विश कर पा रहे हो ना दोनों में से कि ओके ये नॉर्मल ब्रेन टिश्यू है, ये ट्यूमर टिश्यू है। लेकिन द एपेंडाइमोमा इज़ मॉडरेटली वेल डिमार्केटेड। डिमार्केशन कर पाते हो आप नॉर्मल टिश्यू में और ट्यूमर टिश्यू में, लेकिन द डिमार्केशन इज़ नॉट कम्प्लीटली वेल डिमार्केटेड, इट इज़ मॉडरेटली वेल डिमार्केटेड। ठीक है जी। और तो अगर तो बेटा ये ट्यूमर आपका एपेंडाइमोमा जो वाइटल स्ट्रक्चर्स के करीब मौजूद है, ब्रेन स्टेम के करीब, जैसे कि मेडल्ला के करीब, पोन्स के करीब, तो आपको इसकी बाउंड्रीज थोड़ी समझ नहीं आती कि अच्छा ये यहाँ तक ट्यूमर है, बस फिर तो इसको फटाफट से रिजेक्ट कर लो सर्जिकली, फिर तो मामला हल हो गया। लेकिन क्योंकि इसकी जो बाउंड्रीज हैं वो क्लियर नहीं होती, वेल डिमार्केटेड नहीं होती, मॉडरेटली वेल डिमार्केटेड होती हैं, तो इसलिए फ़र्ज़ करो ये मेडल्ला है, अब आपको तो पता नहीं है ना बेटा कि ये ट्यूमर कहाँ तक गया हुआ है आगे पीछे, तो इसलिए आपको पूरा वाइटल स्ट्रक्चर, अगर ये मेडल्ला है तो रिमूव करना पड़ता है, पोन से तो पूरा रिमूव करना पड़ता है। लुक, एपेंडाइमोमा इज मॉडरेटली वेल डिमार्केटेड। काश ये परफेक्टली वेल डिमार्केटेड होता, फिर कितना आसान होता ना कि अगर ये आपका मेडल्ला है तो आपको मेडल्ला को छेड़ना ही नहीं पड़ता, सिर्फ ट्यूमर निकाल लेते, इजीली आपको बाउंड्रीज पता होती। बट बिकॉज इट इज़ मॉडरेटली वेल डिमार्केटेड, तो अगर तो ये वाइटल स्ट्रक्चर्स के करीब है ना, तो बेटा कंप्लीट रिमूवल आप इसका नहीं कर पाएंगे आपको, क्योंकि इसकी बाउंड्रीज ही नहीं पता चलेंगी कि कहाँ तक ये ट्यूमर एक्सटेंड करके जा चुका है। ठीक है जी, इस तरीके से। या इन स्पाइनल कॉर्ड टोटल रिजेक्शन इज़ मोर फिजिबल कंपेयर टू द एपेंडाइमोमा डेवलपिंग इन द वेंट्रिकल्स। स्पाइनल कॉर्ड के अंदर फिर भी इसकी मार्जिन्स जो हैं आप डिमार्केट कर पाते हो और वहाँ पे रिजेक्शन ज़्यादा फिजिबल होता है। ठीक है बच्चों। व्हाट अबाउट दिस ट्यूमर अंडर माइक्रोस्कोप, हिस्टोपैथोलॉजी? If you look into the tumor cells under the microscope, the ependymoma obviously composed of the cells. The tumor cells are round, regular. The cells are regular. Their nuclei is round to oval.
inside the nucleus you will have lots of granular chromatin and दो सेल न्यूक्लियाई के बीच में काफ़ी fibrillary background होता है. If this is the tumor, so if I take the two tumor cells out, they are very much irregular. Nuclei is round to oval. Nuclei के अंदर chromatin काफ़ी granular होता है. And in between there is a dense fibrillary background. काफ़ी fibrillary processes होते हैं जो fibrillary background किस्म की एक appearance देते हैं. ठीक है बच्चों. So if I keep this part easy, so I will say Grossley tumor कैसा होता है बच्चों? Solid होता है, ज़्यादा infiltrative नहीं होता. पोस्टीरियर फोसा में फोर्थ वेंट्रिकल के फ्लोर से ये ओरिजिनेट होता है, नीचे एक्सटेंड करके स्पाइनल कॉर्ड के सर्वाइकल जो स्पाइनल कैनाल होती है वहाँ तक आ सकता है. ठीक है. ये ट्यूमर मॉडरेटली वेल डिमार्केटेड होता है, इसलिए इसकी बाउंड्रीज ज़्यादा पता नहीं चलती कि कहाँ तक एक्सटेंड कर रहा है. सो कंप्लीट रिजेक्शन ऑफ दिस ट्यूमर थोड़ा मुश्किल हो जाता है उस केसेस में. ठीक है. उसके अलावा हिस्टोपैथ पे इसके ट्यूमर सेल्स के बारे में बताया और मैंने बताया कि फिब्रिलरी बैकग्राउंड होता है. एक बहुत इम्पॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक फीचर इस ट्यूमर का, बहुत इंपॉर्टेंट फीचर जो कि इस ट्यूमर को दूसरे सारे ग्लायोमास से डिस्टिंग्विश करता है, वो है द प्रेजेंस ऑफ रोजेट. दीज स्ट्रक्चर्स रोजेट्स. अगर आपने बेटा हिस्टोपैथोलॉजी की एक ग्लायोमा की, आपको पता नहीं है वो ग्लायोमा एस्ट्रोसाइटोमा है, ओलिगोडेंड्रोग्लियोमा है या फिर वो एपेंडाइमोमा है, अगर आप उस ट्यूमर टिश्यू की हिस्टोपैथोलॉजी करते हैं उस पर आपको अगर रोजेट मिल जाते हैं तो इट इज़ 100% योर एपेंडाइमोमा. राइट. ओके. सो अब ये रोजेट भी दो तरह के होते हैं जो कि आपको हिस्टोपैथ पे दिखेंगे. आई होप मैं सही से विजिबिलिटी है. ओके. एक होता है ट्रू रोजेट, एक होता है पेरीवास्कुलर सूडो रोजेट. हालांकि पेरीवास्कुलर सूडो रोजेट्स आर मोर कॉमन. राइट. Perivascular pseudo rosettes are more common. What is the difference between the true rosette and the pseudo rosette? The true rosettes, they resemble the embryological ependymal canal with long delicate processes extending into the lumen. Look beta, this is the ventricular cavity of your ventricles. Just a second. Yeah, this is this inside. Just a second. This is the cavity of the ventricles. Okay, and these are the ependymal tumor cells, and you see from these tumor ependymal cells the long delicate processes are entering into the cavity of the lumen, into the cavity, these long fibrillary processes. This is said to be the true rosette. What are the features of true rosette? Single layer of the tumor cells is present, long delicate fibers are directly extending into the lumen of the ventricle. And can you differentiate between this true rosette and the perivascular pseudo rosette? The difference is of the blood vessel. The long filamentous processes are heading towards the blood vessel, and in this case the true rosette, the fibrillary processes are directed towards the cavity, the lumen of the ventricle, and here is the blood vessel in between. You can see this is the nuclear free zone composed of the fibrillary processes radiating towards the central blood vessel. So there is like the tumor cells, then these are the fibrillary processes, and these fibrillary processes are heading towards the central blood vessel, right? And in this case there is no central blood vessel. True rosette की दो types होती हैं बेटा. If the appearance is more like this, or the appearance can be more like this. And because this is looking more like a canal, so it is said to be the canal-like true rosette. And if it is not elongated, it is looking more like a gland, right? So these are the two types of rosette. Even I can show you the same thing from the basis. Just a second. Okay. Let me show you. Can you see in this picture beta? I hope you can differentiate between the true rosette and the pseudo rosette. Can you see this lumen, right? And can you see the tumor cells?
Can you see the tumor cells surrounding the lumen and the fibrillary processes coming from these tumor cells extending towards the lumen, right? This is the tree rosette. Yeah, where is the pseudovascular perivascular pseudo rosette? This is the perivascular pseudo rosette. Can you see the tumor cells are here, and their fibrillary processes are heading towards you can see this red color in between. This is the blood vessel present. Isn't it very much beautiful? Isn't it? You can see this is how we know there is no blood vessel. There is no blood vessel. The fibrillary processes are heading towards the lumen. The fibrillary processes are heading towards the blood vessel. This is the true rosette. This is the perivascular pseudo rosette, and this is the most common type. Perivascular pseudo rosette is the most common type. So these rosettes are the characteristic features of what glioma? Ependymoma, right? So this is it. Now let me take you to the very next page. Here we'll be talking about the grading of your glioma, which we are discussing. That is the ependymoma, right, beta? So the grading of ependymoma, by the way, most of the ependymoma, they are low grade, well differentiated grade 2 tumors, right? But some are grade 3 tumors. Obviously they will not be well differentiated, they will be poorly differentiated high grade tumors, और इनको हम एनाप्लास्टिक एपेंडाइमोमा भी कहते हैं. इनके ये करेक्टरिस्टिक फीचर्स होते हैं. और वैसे भी जो हाई ग्रेड ट्यूमर होता है, पुअरली डिफरेंशिएटेड होता है, उनमें ये फीचर्स पाए जाते हैं, जैसे कि सेल डेंसिटी का ज़्यादा होना, क्योंकि माइटोसिस ज़्यादा है, माइक्रोवेस्कुलेचर का प्रोलिफरेट करना, बहुत ज़्यादा ब्लड वेजल्स का बनना, बहुत ज़्यादा ब्लड वेजल्स के बनने के साथ साथ जो है वो palisading necrosis का होना. The type of the necrosis characterized by this is the central area of the necrosis. So in this central area of the necrosis, the cells which are not under necrosis line in such a way in this palisading fashion. So this is said to be the palisading necrosis. यहाँ पे centrally तो necrosis होती है, बाकी periphery में ये आपको जिंदा cells मिलते हैं. ठीक है जी. So grade 3 ependymoma, also known as the anaplastic ependymoma. And then at number 3 comes the myxopapillary ependymoma. It's a WHO grade 1 ependymoma. So it is very much well differentiated low grade tumor. It arises from the phylum terminale of the spinal cord, right? मैंने बताया था ependymoma ना सिर्फ ventricles में, नीचे spinal cord में से भी arise होता है. The tumor cells present in this category, they are more cuboidal in shape, और ये बड़े papillary fashion में arrange होते हैं. Can you see? Isn't it a papilla? Isn't it it is a papilla, and these are the cuboidal tumor cells, जिसके नीचे फाइब्रोवास्कुलर आपको म्यूसिन रिच फाइब्रोवास्कुलर कोर मिल रहा है. फाइबर्स होते हैं इसके अंदर कोलेजन के, और ब्लड वेजल्स तो मिल ही रही हैं आपको. सो ग्रेड 1 ट्यूमर को हम क्या कहते हैं? ग्रेड 1 एपेंडाइमोमा को मिक्सोपेपिलरी एपेंडाइमोमा कहते हैं. ठीक है. कहाँ से ओरिजिनेट होता है? फाइलम टर्मिनाले ऑफ स्पाइनल कॉर्ड से. पेपिलरी ग्रोथ पैटर्न होता है इस ट्यूमर का. ये क्यूबॉइडल जो है सेल्स हैं वो ट्यूमर सेल्स हैं. पेपिलरी पैटर्न ऑफ ग्रोथ है, और इसके कोर में फाइब्रोवास्कुलर जो है बेटा, फाइब्रोवास्कुलरिटी मौजूद है, फाइबर्स और ब्लड वेजल्स मौजूद हैं. एंड नंबर 4 कम्स इन अदर टाइप, दैट इज आल्सो द WHO ग्रेड 1 एपेंडाइमोमा. इट इज सेड टू बी द सब एपेंडाइमोमा. जब ये ग्रेड 1 ट्यूमर है, ये भी ग्रेड 1 ट्यूमर है, तो अलग अलग क्यों? नाम की वजह से नहीं. इनको मैक्सोपेपिलरी एपेंडाइमोमा कहते हैं, इनको सब एपेंडाइमोमा कहते हैं. What is the difference? If they both have the grade 1, the difference is of location. Number 1, it arises from the phylum terminale of the spinal cord, and this arises from the lateral or the fourth ventricle, and as the name indicates, they are the subependymomas. So if this is the fourth ventricle, let's suppose these are the ependymal lining cells, so the tumor is subependymoma है ये, यानी कि एपेंडाइमल सेल्स के नीचे वेंट्रिकल की कैविटी में ये ग्रो करता है. सब एपेंडाइमोमा इसलिए इसको हम कहते हैं. ठीक है. तो एक तो लोकेशन का फ़र्क हो गया दोनों में. बोथ आर ग्रेड 1, यानी कि दोनों के अंदर जो है माइटोटिक रेट जो है वो सेम होगा, सेल्यूलर डेंसिटी सेम होगी. ठीक है बेटा, लोकेशन समझ आ गई. दिस इज़ मोस्टली एसिम्टोमेटिक. अगर काफ़ी बड़ा हुआ
तो ऑब्स्ट्रक्टिव हाइड्रोसेफेलस करा सकता है। ऑब्वियस सी बात है, जब इतना बड़ा ट्यूमर होगा तो आपका जो CSF है वो ड्रेन नहीं हो पाएगा। जब ड्रेन नहीं हो पाएगा तो CSF का प्रेशर जो है वो भी बढ़ेगा और CSF की मिकदार यहाँ पे ज़्यादा होती जाएगी। ठीक है बेटा, हाइड्रोसेफेलस दो वजह से हो सकता है ना, या तो CSF की प्रोडक्शन ज़्यादा हो या तो ड्रेनेज कम हो। यहाँ पे इतना बड़ा ट्यूमर होगा तो ड्रेनेज पॉसिबल नहीं हो पाती, इस वजह से ऑब्स्ट्रक्टिव हाइड्रोसेफेलस हो जाती है। पेशेंट विथ एपेंडाइमोमा, व्हाट यू थिंक विल बी द क्लिनिकल फीचर्स? The clinical features of the patient with the ependymoma, as I mentioned कि मोस्टली जो एपेंडाइमोमा वेंट्रिकल में से ओरिजिनेट होते हैं, वो पोस्टीरियर फोसा से ओरिजिनेट होते हैं। जो बेटा मेन कंप्लेन होती है, मेन मैनिफेस्टेशन होती है, दैट इज़ हाइड्रोसेफेलस। अगर ये आपका बेटा फोर्थ वेंट्रिकल है पोस्टीरियर फोसा में, ठीक है जी, और ये आपके एपेंडाइमल सेल्स हैं जहाँ से आपका ग्रो करेगा एपेंडाइमोमा, और ये एपेंडाइमोमा ग्रो कर गया इतना बड़ा और अंदर कैविटी तो बिल्कुल ही ख़त्म हो गई। तो इस कैविटी के ख़त्म होने की वजह से, इतनी बड़ी ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से CSF ड्रेन नहीं हो पाएगा और हाइड्रोसेफेलस हो जाएगी। हाइड्रोसेफेलस सेकेंडरी टू ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द फोर्थ वेंट्रिकल। ठीक है, जो इसकी ओपनिंग होती है ना, जो जहाँ से आगे ड्रेन होता है, वो ओपनिंग ऑब्वियसली क्लोज हो जाती है। और जो भी एपेंडाइमोमा पोस्टीरियर फोसा में डेवलप होता है बेटा, उनकी मोस्टली ओवरऑल प्रोग्नोसिस बड़ी वर्स्ट होती है। ठीक है, और जैसे मैंने बताया था शुरू में स्टार्ट ऑफ लेक्चर में कि यंग चिल्ड्रन के अंदर फर्स्ट सेकंड डिकेड के अंदर जो एपेंडाइमोमास बनते हैं वो वेंट्रिकल्स से ग्रो करते हैं। ठीक है, एडल्ट्स जो होते हैं ना, लेट एडल्ट्स, उनमें एपेंडाइमोमा नीचे स्पाइनल कॉर्ड से ग्रो करते हैं। ठीक है जी, इस तरीके से दिस इज ऑल अबाउट द एपेंडाइमोमा, द मेन टाइप ऑफ द एपेंडाइमोमा। राइट आफ्टर दैट now comes some other ependymal tumors. These are the tumors, the ependymal tumors. Let me show you and explain you what is the difference between these and the one we discussed. Other ependymal tumors, number one is the choroid plexus papilloma. अब choroid plexus, ठीक है, अब देखें ना, ये अगर आपका एक वेंट्रिकुलर कैविटी है, इसके लाइनिंग एपेंडाइमल सेल्स होते हैं, तो कोरोइड भी इसी टेरिटरी में मौजूद होता है। कोरोइड प्लेक्सस जो होता है ब्लड वेजल्स का, कोरोइड प्लेक्सस ऑफ ब्लड वेजल्स। सो बिकॉज इट इज़ look, what I'm trying to say, this is the ventricular cavity, this is the choroid plexus, okay, and these nice little babies are the ependymal cells. The other ependymal tumors, they originate from number one, this choroid plexus, because choroid plexus is present in proximity to the ependymal cells. The choroid plexus is present in proximity to these ependymal cells. So the tumors arising from this choroid plexus, they are also said to be the ependymal tumors in the category of other ependymal tumors. So the tumor which is going to arise from this choroid plexus, it is said to be the choroid plexus papilloma. ठीक है, एनीवेयर अलॉन्ग द कोरोइड प्लेक्सस। बच्चों के अंदर लेटरल वेंट्रिकल्स, एडल्ट्स में फोर्थ वेंट्रिकल का कोरोइड प्लेक्सस। ठीक हो गया। अपीयरेंस इसकी काफ़ी पेपिलरी ग्रोथ होती है। ठीक है, ऑलमोस्ट एग्जैक्टली रिकैपिचुलेट स्ट्रक्चर ऑफ नॉर्मल कोरोइड प्लेक्सस। कोरोइड प्लेक्सस से जो कोरोइड प्लेक्सस पेपिलोमा अराइज होता है, उसकी अपीयरेंस काफ़ी सी पेपिलरी टाइप ऑफ अपीयरेंस होती है, पेपिला होते हैं, और ऐसा इसका मतलब इसकी ऐसी अपीयरेंस होती है इस ट्यूमर की ग्रो होने के बाद, ऐसा लगता ही नहीं है कि ये ट्यूमर, ऐसा लगता है कि कम्प्लीटली ये कोरोइड प्लेक्सस है, कम्प्लीटली इसको रिकैपिचुलेट कर लेता है। देख, द अपीयरेंस इज पेपिलरी ग्रोथ, ऑलमोस्ट एग्जैक्टली रिकैपिचुलेट द स्ट्रक्चर ऑफ द नॉर्मल कोरोइड प्लेक्सस। ठीक है, जो पेपिला होते हैं उनमें एक कनेक्टिव टिश्यू की स्टॉक होती है, और ऊपर जो है क्यूबाइडल या फिर कॉलमनार सेल्स होते हैं। कोई परेशानी इसके अंदर होनी नहीं चाहिए बेटा। अदर एपेंडाइमल ट्यूमर्स में से सबसे पहले क्या डिस्कस किया? कोरोइड प्लेक्सस पेपिलोमा। कहाँ से ओरिजिनेट होता है? कोरोइड प्लेक्सस में से। बच्चों के अंदर कहाँ का कोरोइड प्लेक्सस? लेटरल वेंट्रिकल का। ठीक है, और एडल्ट्स के अंदर कहाँ का कोरोइड प्लेक्सस? फोर्थ वेंट्रिकल का। कोरोइड प्लेक्सस पेपिलोमा के अगर अपीयरेंस की बात करें तो काफ़ी ऐसे पेपिलरी ग्रोथ होती है, ऐसा लगता है कि कम्प्लीटली ये कोई नॉर्मल सा कोरोइड प्लेक्सस है, कोई ट्यूमर है ही नहीं। ठीक है जी, और इसके अलावा जो पेपिला बनता है उसकी एक कनेक्टिव टिश्यू स्टॉक होती है, और जो है लाइनिंग सेल्स क्यूबाइडल टू कॉलमनार होते हैं। ठीक है बच्चों, पेशेंट प्रेजेंट कैसे करेगा? ऑब्वियसली बात है, यहाँ से कोरोइड प्लेक्सस पेपिलोमा बनेगा, अंदर
वेंट्रिकुलर ओपनिंग जो होगी उसको ऑब्स्ट्रक्ट करेगा तो हाइड्रोसेफेलिस होगा, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा CSF जमा हो जाएगा, ठीक है। हाइड्रोसेफेलिस ड्यू टू द ऑब्स्ट्रक्शन और ड्यू टू द CSF ओवर प्रोडक्शन बाय द कोरॉइड प्लेक्सस। क्योंकि देखें ना, एक बात आप समझने की कोशिश करें, ये कोरॉइड प्लेक्सस है, इसमें एक ट्यूमर डेवलप हुआ, जो ट्यूमर डेवलप हुआ वो भी तो CSF बनाने की खासियत रखता है ना। पहले सिर्फ नॉर्मल कोरॉइड प्लेक्सस से CSF आ रहा था, अब जो ट्यूमर बनाए कोरॉइड प्लेक्सस में उससे भी CSF आ रहा है, तो CSF ओवर प्रोडक्शन हो गई। CSF ओवर प्रोडक्शन की वजह से भी हाइड्रोसेफेलिस होता है। दूसरा, ये कोरॉइड प्लेक्सस पेपिलोमा, उसका इतना बड़ा मैस होगा, वो जाहिर सी बात है ऑब्स्ट्रक्शन भी करेगा, तो उस वजह से भी हाइड्रोसेफेलिस होगा, ठीक है बच्चों। Another ependymal tumor is the choroid plexus carcinoma. That was the papilloma, and this is like the younger brother, that is carcinoma. It is far rarer type, far rarer type, and it resembles the adenocarcinoma. If even you skip these two, I mean, not to bother, but yeah, just read about this a little. Far rarer, resemble the adenocarcinoma. खास करके चिल्ड्रन में होता है, जो पेपिलोमा था वो चिल्ड्रन के साथ एडल्ट्स में भी हो रहा था। In adults, it does appear, but most common in children's, right? In adults, it must be differentiated from the metastatic carcinoma, right? Which is much more common than the primary carcinoma of the choroid. You understanding what I'm trying to say, beta? That two things are there. One is the choroid plexus carcinoma. One is the metastatic carcinoma. Previous year, I developed CA breast. I developed the CA breast, and this carcinoma extended from my breast all the way to the brain. All the way to the brain. And in my brain, I developed the carcinoma due to the metastasis, right? Due to metastasis, I developed the carcinoma. This carcinoma is very much similar to this choroid plexus carcinoma. So make sure and be clear if it is the metastatic carcinoma or the choroid plexus carcinoma. That is it, right? And the last category जो कि other ependymal tumors में आती है, that is the colloid cyst of the third ventricle. नाम से ही पता चल गया होगा बेटा, थर्ड वेंट्रिकल के अंदर कोई सिस्ट बनेगा। ये नॉन नियोप्लास्टिक इनलार्जिंग सिस्ट होता है, यंग एडल्ट्स में बनता है थर्ड वेंट्रिकल के अंदर, रूफ ऑफ द थर्ड वेंट्रिकल में, एंड हेयर इट कैन ऑब्स्ट्रक्ट वन और बोथ ऑफ द फोरामेन मनरो, जिसकी वजह से बेटा जाहिर सी बात है, अगर फोरामेन मनरो की जो ओपनिंग्स हैं वही बंद हो जाएंगी तो थर्ड वेंट्रिकल से फ्लूइड ड्रेन हो पाएगा, थर्ड वेंट्रिकल से फ्लूइड नीचे ड्रेन नहीं हो पाएगा, और ऑब्स्ट्रक्टिव या फिर नॉन कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसेफेलिस होगा, दैट कैन बी वेरी मच फैटल। समझ आई ना बात बेटा? थर्ड वेंट्रिकल में CSF है, लेकिन इतना बड़ा सिस्ट है कि फोरामेन मनरो की ओपनिंग्स ब्लॉक हो गई हैं और CSF नीचे ड्रेन नहीं हो पा रहा। पेशेंट कम्स टू यू विथ हेडेक, समटाइम्स पोजिशनल हेडेक, राइट? That's all about this beta. So I hope you are clear, and this is very much easy to you. Just a second. Okay, from now onwards beta, I'll be discussing the neuronal tumors, and you are now done with the glial tumors.